So once again, we are here to conduct one more webinar in our webinar series. Uh, Today, we all gathered here uh, to attend the webinar on group discussion skills for head starts in professional career, a premier. Before starting our webinar, I would like to request our Honorable Principal Sir to give his words. Words, sir, please. Yes, good evening, everyone. Yes, as good evening, sir. Our routine, we are all here back at 5 p.m. Yeah, very good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to one and all the students, all the faculty members, Dr. Uday Chaya, the presenter for the day today. It's good that we are continuing with this. Anyway, this is something which is absolutely directly useful for the batch, which is supposed to pass out, and also equally for the students in the previous years, that we keep on speaking without any check whether somebody is receiving what we are saying or not. But what is fruitful speaking, that is something which is the topic of the day, that whatever we speak in the group, we discuss in the group, that is something what we express, and we express our thoughts. It is good that our thoughts should be directed in the goal, in the direction of the goal. Say you are given something to bring out, make a decision, and that is what is a day-to-day process in our all's life. That day-to-day we need to make some decisions in consultation with others, and this is an art. It says to discuss something in art, so that we come out with something which is useful, which is acceptable to all. And always in all the decisions, everyone is not satisfied. That is absolutely true. And in that, how to put our thoughts, how to listen to others, how to synchronize with others' thoughts, and look whether our thoughts, whether their thoughts and the actions, if we put it into the form of decision, will bring out the required outcome or not. That is what something which we look for when we talk about group discussion. So it is something, we'll say that it's art of listening, art of speaking, and coming to a decision which is useful to everyone, to the organizations. At the highest level, it should be for the organization, not for the person. There are wonderful films also on this topic. Ek Ruka Hua Faisla, that is one of the best film based on the, you can say it's somebody really wants to learn about group discussion. That should be the film you should all see once, if you are not. So I'm not taking much time. Dr. Chaya is absolutely ready. I see him glowing with the light. And well, Dr. Chaya, this is God's country. You can carry on. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Before starting, I would like to introduce our beloved Professor U.K. Chaya. Dr. U.K. Chaya is an assistant professor in production engineering department, and he is also serving his services in training and placement as a training and placement officer, and he is having a vast experience of more than 25 years in academics. So with this short introduction, I would like to request now Professor U.K. Chaya sir to deliver the session. Please, sir. Yes, I would like to intervene for a minute before Dr. UKC starts. Well, I would like to point out what he normally doesn't do. That he has graduated from NITI, Mumbai. If it is good that he is with us, but otherwise, after completion of his PG from NITI, he might have joined some MNC. But he decided to continue with the education only. Subsequently, he did his doctoral thesis from
GQ in the area of supply chain management, something which is very, very important in these days of pandemic, where everyone is worried about how they will survive. Supply chain is something which is very, very important. So he is one of the person who is having very good professional flavor, you can say. Very less in the academics are found like this. So it's our pleasure to listen to him. Thank you. Thank you very much, Nayan sir, for introducing me. I do not think I should be introduced to my own students. I trust all of the students, all the student friends are healthy, first of all, and also at the same time itching to go back to normal life. Let us believe that this is going to be sooner rather than later. We have already been at home since last 2 months, and we think that we should get back to normal. What I'm trying is I'm going to speak a little in Hindi so that to make more interactive and also make more understandable for a lot of you people. ग्रुप डिस्कशन के बारे में सब जानते हैं. ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? सबसे पहले डिस्कशन क्यों होता है और क्या होता है? डिस्कशन ज्यादा, एक से ज्यादा पर्सन हुए तभी तो डिस्कशन होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल डिस्कशन की जो बात होती है ना, so that becomes our problem area, and that is something we need to learn. अब ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो रहते हैं उनको यही चाहिए बच्चों को. I mean, whosoever they are recruiting, he should be good at communication, he should be structured in thinking, and also there are other attributes which are expected of the new employee they are recruiting. So first thing, group discussion is an interview process. So this happens exactly after your first screening gets over. First screening मतलब ये हो गया आपका रिटन टेस्ट वगैरह हो गया या ऑनलाइन टेस्ट अभी आजकल होता है, तो उसके बाद ये ग्रुप डिस्कशन इज द नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन भी है, वो स्क्रीनिंग ही तो है, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद आई मीन दैट इज यू नो जस्ट वन स्टेप फर्दर टू गिव यू अ डायरेक्ट इंटरव्यू. अब इंटरव्यू होता है तो next is your employment. So this is, you know, just next to your entry level. अब वजह क्या है? Why do we need to have a group discussion, or why rather companies, you know, wish to have group discussion session in their interview process? अब जैसे मैंने बताया कि ग्रुप डिस्कशन एक एंट्री लेवल तो है, लेकिन एक बार एंट्री लेवल क्रॉस कर दिया फिर तो पूरी लाइफ, मतलब पूरी प्रोफेशनल लाइफ यू आर गोइंग टू नीड दिस. ये सिर्फ इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए नहीं है, ये दिस इज यू नो दिस इज फॉर रियल एक्चुअल पर्पस ऑफ प्रोफेशनल लाइफ. नाउ विथ सम स्लाइड्स आई एम गोइंग टू शेयर a few points as to how one should prepare about discussion. I would request you not to just limit it to interview process or group discussion while interviewing, but generally you try to see this as a professional way in which you need to, you know, discuss anything when you are on job. So I'm presenting some of the slides here. Just please stand by for a moment. Are these slides, is this slide visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Yeah, I'm trying to make it full screen, but I'm not sure whether it will work that way or not. Did it change to full screen? I don't think so. But anyway, we are going to begin with the key discussion points of the presentation. First question is why group discussion is critical throughout the professional career. अब एक बार आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, आपको ग्रुप डिस्कशन आपका कंपनी करती है, तो वो सबसे पहले आपको ग्रुप डिस्कशन में क्यों बिठाती है? जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो ये वो स्क्रीनिंग होता है कि जो बच्चे हैं उसमें से कुछ ही लोगों का इंटरव्यू ये लोग ले पाएंगे. तो बिफोर टेकिंग दैट इंटरव्यू दे नीड टू नो वेदर द ग्रुप और एनीवन इन द ग्रुप इज कैपेबल or is he possessing the skill which is necessary for them to, you know, take into the organization.
एक तो ये हो गया, एक बार डिस्कस कर लिया तो कंपनी सिर्फ ये इंटरव्यू प्रोसेस के लिए नहीं देखती है, ये देखती है ये बंदा whosoever we are potentially recruiting for our organization, will he be capable of leading the pack? लीडिंग द पैक मतलब क्या? वो इनिशिएटिव ले पाएगा, वो अपनी बात समझा पाएगा, या उसको वो कोई पढ़ता लिखता भी है, उसके खुद की सोच भी कोई होती है या नहीं है. सो दैट्स व्हाट दे बेसिकली ट्राई टू सी आउट ऑफ द डिस्कशन. तो ये ग्रुप डिस्कशन के बारे में दो चीजें हम आज थोड़ी बहुत देखेंगे. एक तो कैसे उसको प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ ग्रुप डिस्कशन प्रायर टू द इवेंट, एंड विल ऑल्सो ट्राई टू सी प्रायर मतलब पहले, इवेंट के पहले क्या करना होता है ग्रुप डिस्कशन के, और उसके बाद जब तुम ग्रुप डिस्कशन में बैठ जाते हो उसके तब उनको तुम्हारा तब कैसे उसको प्रेजेंट करना है. These are the two main issues which we are going to discuss. So we'll move to this thing. We'll formally define group discussion होता क्या है. It's a psychoanalytical screening method. अब psycho मतलब पता है कि psychological और analytical दो चीजें साथ में होती है. ये ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें एक ऑब्जर्वर रहेगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप रहेगा और यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन इट. It's not just speaking. That's the very theme of this discussion. It's not only thinking, it's how you think, how you present your thinking, and how do you behave in a group. ये सब होता है, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल और एनालिटिकल दोनों बोलते हैं. The idea, अब क्यों हुआ जिसका जवाब मैंने पहले दे दिया. The idea is to identify a person with required attitudinal traits, attitudinal and behavioral. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको अगर कोई सामने से आर्ग्यूमेंट आ जाती है तो वो आग बबूले हो जाते हैं, बिकॉज व्हाट दे वांट टू एम्फसाइज इज व्हाटएवर आई से इज फाइन, nobody else can speak to me or force me to change my opinion. ऐसे ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, और अगर ऐसे ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसका जवाब बड़ा क्लियर सा रहता है कि ये बंदा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम का नहीं है. अब प्रायर की बात करते हैं. प्रिपरेशन क्या होती है, क्या लगती है ग्रुप डिस्कशन के लिए? प्रायर पहले क्या लगती है और पहले क्या थॉट प्रोसेस चाहिए होता है और कैसे उसकी प्रिपरेशन रहेगी. सबसे पहले जो बंदा रहता है, whoever sits for an employment, he needs to be aware about the current global national issue. For an example, अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में कुछ डिटेल्स he is expected to know. अब दूसरी चीज, अब इंजीनियरिंग का बंदा है, वो ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठ रहा है, तब दूसरी चीज उसको क्या चाहिए होती है, क्या समझनी चाहिए होती है, वो इमर्जिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है. अब ब्लॉकचेन, अगर आईटी का बंदा बैठेगा और ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानता, डेटा एनालिटिक्स के बारे में नहीं जानता, तो फिर वो तो ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज नॉट द राइट कैंडिडेट फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट. तीसरी चीज एक इंजीनियर के लिए बड़ी जरूरी है, वो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की नॉलेज. अब इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है? इकोनॉमिक्स मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई भी इंडस्ट्री या तो कोई भी एडवेंचर, कोई भी साहस जिसको बोलते हैं, वो चलते हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स की वजह से चलते हैं. अब कुछ लोग बोलेंगे कि एनजीओ चलता है वो ऐसे ही नॉन प्रॉफिट के लिए चलता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट के लिए भी उसको सस्टेन करने के लिए सम इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड. और चौथी चीज जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन के प्रायर जानने की पहले, कि कैंडिडेट फ्यूचर के बारे में, खुद के फ्यूचर के बारे में, या तो कंपनी के फ्यूचर के बारे में, या तो ग्रुप के या तो देश के फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है. सो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर, इट कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन. सो ये चार चीज अगर इंसान पहले से सोचना शुरू करता है, देन देयर आर गुड चांसेस दैट ही माइट डू वेल. सबसे पहली चीज, करंट ग्लोबल नेशनल इश्यूज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. अब कैसे, अब ग्रुप डिस्कशन हो गया, आपका रिटन टेस्ट हो गया, तो अब बंदा सिलेक्ट भी हो गया, रिटन टेस्ट में पास कर लिया, अब उसको ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठाते हैं. अब 6 से 8 लोगों का ग्रुप एक साथ में बैठेगा. अब जो चीजें रखने वाला हूं वो ऐसी चीजें हैं जिसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पहले से आप रख लो. कैसे, हाउ टू प्रिपेयर. हेलो, हाँ सर, તમારી પીપીટી છે એ રોટેટ નથી થતી. नेक्स्ट નથી થતી. હા હા. I don't know, there is some network issue. Is this slide visible? ટાઇટલ સ્લાઇડ છે એ વિઝિબલ છે.
બસ હવે there are- હવે થાય છે. Okay, fine. So, I mean, this is again, I'm sorry for the interruption or whatever technical snag there was. So, prior जैसे मैंने बात बताई, ये 4 चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है? वो पहले प्रायर, बिफोर सिटिंग फॉर द ग्रुप डिस्कशन. अब लेके चलते हैं अब ग्रुप डिस्कशन के स्ट्रक्चर. अब जब तुम बैठ रहे हो ग्रुप डिस्कशन के लिए, तब तुमको क्या दिमाग में रखना है और तुम्हारा खुद का जो डिस्कशन है उसको तुम कैसे बेस करोगे. There are 3 main phases. Charles sir, this is audible and visible. This slide is visible now? Yes, sir. Fine. So there are 3 main phases of group discussion. First is initiation. Initiation का मतलब क्या हो गया? शुरुआत और introduction. Introduction आपको थीम पहले से दे दी गई है और उसको आपको इनिशिएट करना है. अब 6 से 8 लोगों का ग्रुप है. कौन पहले बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा? अब क्या बोलेगा और कैसे बोलेगा वो इन फोर्थकमिंग स्लाइड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. अब पहला जो इनिशिएशन जो है वो तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन का 30% पार्ट है. इफ यू इनिशिएट वेल, इफ यू इंट्रोड्यूस द थीम वेल, then the ball is rolling now we can further deliberate on that. So that will happen during the body of group discussion, which is the 50% part. अब 30 50 20 कैसे लिखे हैं मैंने, ये 30 50 20 जो है वो अप्रोक्सीमेट तुम्हारे नंबर्स, कैसे कंपनी तुमको रेट कैसे करेगी, तुमको नंबर्स कैसे देगी, उसके हिसाब से मैंने ये रखे हैं. अब दूसरा हो गया बॉडी ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जो तुम्हारा मेन पार्ट है, सबसे ज्यादा टाइम तक चलता है. और तीसरा हो गया समराइजेशन और कंक्लूजन. तुम खत्म कैसे करते हो, समराइज कैसे करते हो. इनिशिएशन की सबसे पहले बात करते हैं. इनिशिएशन जो कि पहला स्टेज है ग्रुप डिस्कशन का. अब देखो, इनिशिएट जो करेगा, whosoever goes for opening बैटिंग के लिए जो भी बैट्समैन जाता है उसको रेड बॉल और न्यू बॉल से खेलना होता है. सो बॉल इज स्विंगिंग, राइट. इट्स ए हाई प्रॉफिट हाई लॉस स्ट्रेटेजी. इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम बहुत अच्छा कर जाते हो, लेकिन ये थोड़ा सा फंबल कर जाते हो ना तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है. So, I mean, that's what I've written here. So you make a head start if you get it right. अब कैसे राइट हुआ, कितना राइट हुआ, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. और दूसरा, कैसे बोलना चाहिए, इनिशिएट कैसे करना चाहिए. फोकस ऑन बीइंग द फर्स्ट सेंसिबल स्पीकर, जो दिमाग लगा के, सोच के, समझ के बोलता है, rather than just being the first speaker. अब कुछ लोग इतने एंथुसियाज्म में रहते हैं कि मैं सबसे पहले मैं बोलूंगा. उसकी वजह यही होती है कि सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे मिल जाएंगे, सबसे पहले मैंने बोल लिया तो ये. So one should rather focus on being the first sensible speaker rather than being just the first speaker. गलत फैक्ट्स बोल दिए या थोड़ा सा स्टैमर हो गया, मैं शुरू तो कर दिया मैंने, लेकिन मैंने स्टटर कर दिया, रॉन्ग फैक्ट्स कर दिया, सो फिर तो ये लग गया. तो डैमेज जो इससे होता है ना वो बड़ा इररिपेरेबल हो जाता है. ऐसा नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल टू कवर अप, लेकिन आई मीन यू विल नीड टू पुट मोर एफर्ट्स. और एक बार आदमी नर्वस हो गया ना थोड़ा बहुत, फिर उसको रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. इसलिए यू इनिशिएट ओनली इफ you are very comfortable and you are very thorough about the facts and figures. ऐसा जरूरी नहीं है कि you need to give facts and figures to begin with, but you need to know just a little about the topic or the words which you are speaking. दूसरी चीज, impeccable initiation, मतलब बहुत बढ़िया शानदार शुरुआत, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसको फिर इंसान ने बोलना ही बंद कर दिया. अब पूरा ग्रुप डिस्कशन हो गया तो उसमें आदमी ने शुरुआत कर दी और इसके बाद में कुछ नहीं बोला, तो इसका बड़ा नेगेटिव इसकी असर होती है. अब कंपनी को पता चल जाता है कि इसने बोल तो लिया, लेकिन वो उसको देयर इज नो कन्विक्शन, उसको खुद को ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, लेकिन उसको ये पता है कि सबसे पहले जो भी मैं बोलूंगा ना उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं और मुझे लीडर चुन लिया जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ग्रुप डिस्कशन को ऑब्जर्व करने के लिए जिनको बिठाती है वो नॉर्मली सब साइकोलॉजी पढ़े हुए होते हैं and they are into that field for so many years. So it's not just that they can be fooled easily. ऐसे नहीं होता है. अब जो इनिशिएट करता है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो पूरा डिस्कशन जो भी रहेगा ना उसको राइट पर्सपेक्टिव में रखेगा. That means he will not allow the group discussion to go out of the track.
उसका जो ट्रैक रहता है। अब ऐसे कई बार, और हम आमतौर पे दोस्तों में बातचीत होती है किसी भी टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल चीज के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है कि वी जस्ट मिस द ट्रैक। हमें जो जिस चीज पे बात करनी होती है ना, वो हम नहीं करते और कुछ और ज्यादा या तो डिट्रैक हो जाता है, डिटूर हो जाते हैं। तो इनिशिएटर जो है उसकी ये भी बोले तो ये बात खत्म नहीं होगी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दे नीड टू कीप द डिस्कशन इन राइट पर्सपेक्टिव, ऑन द राइट ट्रैक। दूसरी चीज जो गुड आइडिया टू इनिशिएट इफ यू हैव एडिक्वेट नॉलेज, वो अंडरस्टैंडेबल सी बात है। अब इनिशिएट कैसे होता है ग्रुप डिस्कशन, कैसे किया जाता है, और क्या क्या तरीके हैं या तो क्या क्या स्टाइल्स हैं जिससे ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट हो सकता है। अब फिर एक बार बता दूं मैं कि ग्रुप डिस्कशन को आप सिर्फ ग्रुप डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से ही मत रखें। whenever you are presenting in public or you are facing an interview, or if you are already selected, and talking about, talking to your peers, talking to your bosses, this is the general technique which is going to be helpful to you in whatever you present. अब डिस्कस अंदर ग्रुप में हो रहा है या किसी और से बात हो रही है या तो तुम्हारा फैमिली का प्रेजेंटेशन है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपैक्टफुल। ये जो टेक्निक्स जो हैं वो तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन या तुम्हारी डिलीवरी को, तुम्हारे प्रेजेंटेशन को इन जनरल इंप्रेसिव बनाती हैं। सो लेट्स बिगिन विथ ऑल दिस ट्रिक्स और आई वुड से टेक्निक्स। क्वोट्स। अब क्वोट का मतलब आपको पता है कि किसी और ने बोला है और हम उसके बारे में बता रहे हैं। अब क्रिश्चियन लू लैंग एक फिलोसोफिस्ट है इटालियन, उसने ये बताया है कि टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। अब मान लो आपको ग्रुप डिस्कशन का आपको जो थीम दी गई है वो ये है कि शुड टेक्नोलॉजी बी एडॉप्टेड एट ऑल कॉस्ट्स। तो उसमें इफ यू बिगिन विथ अ क्वोट, तो दिस इज वन ऑफ द ओपिनियन। अब ये भाई साहब ये बताना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी अगर ठीक से इस्तेमाल होती है तो अच्छी चीज है, वो अच्छा नौकर है, लेकिन अगर उसको बॉस बना दिया जाता है तो फिर वो बड़ी दिक्कत वाली बात। सो दिस इज द क्वोट with which you begin the discussion on whether technology should replace human things. So this is one way. अब सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट वाला है उसके बारे में आप जानते हैं, तो उन्होंने आपको अगर ये टॉपिक दिया जाता है कि शुड कस्टमर बी सेटिस्फाइड एट ऑल कॉस्ट्स, इफ दिस इज द पॉइंट of this is the subject given to you, or this is the topic given to you for group discussion, you would start with this. Sam Walton's का उसका famous quote है, if there is only one boss, customer is the king. वैसे गांधी जी ने भी बताया customer is the king. And ये Sam Walton इससे एक step आगे बढ़ा है कि he can fire everybody in the company from the chairman down on simply by spending his money somewhere else. तुम्हारी कंपनी से माल नहीं खरीदेगा, कहीं और से खरीदेगा। तो ये this kind of quote is a very effective way in initiating a group discussion. दूसरी चीज आ गई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून और अ कर्स, मतलब जो आदमी सोचता है वैसा सोचने पर ऐसे सोचती हुई मशीन या अदर गैजेट्स बनाए तो उसमें क्या है, अगर दैट काइंड ऑफ ए टॉपिक कम्स, so you would start what artificial intelligence actually is the ability of computer program or a machine to think and learn. So you can initiate the group discussion like this. Before delivering or deliberating further on this topic, let's first define what artificial intelligence is. That gives an observer a perspective that this guy has got some good theoretical backup as well along with his presentation skills. So theoretical backup के लिए ये definition भी फायदा करती है। तीसरा क्वेश्चन, अब सबको मतलब how these news channels are operating, they start firing questions right at the beginning. अब कुछ टीचर्स को भी, हमारा जैसे टीचर्स को भी ये आदत होती है कि in order to garner interest, अब कुछ लोगों का तरीका यही होता है कि in order to garner the attention of the entire mass, we'll start with a question so that everybody will become attentive. ये भी बड़ा अच्छा तरीका है।
बट एक्चुअली ये चीज ग्रुप डिस्कशन या एनी प्रोफेशनल थिंग्स के लिए दिमाग में रखनी होती है, दैट दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैम्पर द फ्लो। अब फ्लो को बिगाड़ना नहीं चाहिए, दैट इज, अब ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चन का तरीका ये है कि सवाल भी खुद पूछो और उसका जवाब भी खुद दो। So this is to initiate the discussion, and this is not to to test the knowledge of your peers, और जो भी तुम्हारे साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं उनकी नॉलेज तुम चेक नहीं कर रहे हो, तुम खुद बता रहे हो, because you want to initiate the entire discussion. Questions that promote a flow of ideas are always appreciated because that is going to put the discussion on the track and on the perspective. अब एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन में ऐसा पॉइंट पूछा जाए कि कैन इंडिया बी सेल्फ रिलायंट, अभी 3-4 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब सेल्फ रिलायंस के लिए बताया, सबको पता है। तो अगर ऐसा टॉपिक तुमको ग्रुप डिस्कशन में मिलता है तो तुम ऐसे डिस्कस करोगे कि कैन इंडिया बी सेल्फ रिलायंट फॉर ऑल इज इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट, अब स्वदेशी चीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका ग्रुप डिस्कशन का बिगिनिंग ऐसे हो सकता है कि इफ दिस इज द क्वेश्चन, देन विद द पॉइंट वी कैन बिगिन विद इज व्हाट आर द एक्चुअल मेजर इंपोर्ट्स हैपनिंग नाउ। अब जिनको जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं, अब उनको तुमको चेंज करना है, वो खुद इंडिया में बनाना है। तो देन इन टर्न विल एग्जामिन अवर कैपेबिलिटी। आई एम श्योर यू आर एबल टू पिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट। अगर ऐसा कैन इंडिया बी सेल्फ रिलायंट फॉर इट्स इंपोर्ट नीड्स, तो अब पहला क्वेश्चन ये आएगा, तुम ऐसे ही बिगिन करोगे कि कैन इंडिया बी सेल्फ रिलायंट, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, बट बिफोर दैट लेट्स नो व्हाट्स द प्रेजेंट स्टेटस। अब इंडिया का इंपोर्ट्स क्या क्या हो रहा है और क्या वो बना पाएंगे। वो बढ़िया एक तरीका होता है क्वेश्चन से आंसर देके शुरू करना। चौथी बात आ गई शॉक स्टेटमेंट, चौंका देने वाली बात, सनसनीखेज हैरत अंगेज न्यूज लाइक दैट। अब बड़ी ये इंटरेस्टिंग डिबेट वाली बात चल रही है। अब कोरोना के सिचुएशन में कई देश में ऐसा होता है कि अब हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। मेरे ख्याल से सबको पता है वर्ड हर्ड इम्यूनिटी चीज क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी चीज ऐसी होती है कि अब इन्फेक्ट होने दो, जितने ज्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं वो दे विल बिकम इम्यून टू दिस डिसीज, दे कैन नॉट हैव द डिसीज अगेन। अब एक बार इन्फेक्ट हो गया, वायरल लोड तुम्हारे बॉडी में पाया गया और तुम्हारा एग्जामिनेशन हुआ, टेस्ट हुआ, फिर तुम यू रिकवर एंड यू गो बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब उसके बाद तुमको ये कोरोना वायरस सताएगा नहीं। तो विदेशों में कुछ देशों में ऐसी बात चल रही है कि सबको हर्ड इम्यूनिटी। अब बहुत लंबे टाइम तुम दुनिया को बांध नहीं सकते, किसको घर में बहुत लंबे समय तक बिठा नहीं सकते, तो उसके क्या करो, तुम लोगों को जैसे जो काम करते हैं उनको करने दो, उनको इन्फेक्ट होने दो। अगर इन्फेक्शन होता है तब जाके हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी, अगर इफ दैट इज द थीम ऑफ योर ग्रुप डिस्कशन, शुड हर्ड इम्यूनिटी बी द ऑर्डर ऑफ द डे। इफ मान लो ऐसा तुम्हारा टॉपिक है, then the first shock statement which you would give is like this. ये बड़ा ड्रामेटिक सी बात है, लेकिन it helps in developing a shock. If herd immunity is the way forward in current scenario, तो उसका क्या ये मतलब होता है कि we are ready to let elders and low immunity citizens die? Can we let people die? Is it not inhuman? तो ये शॉक हो गया ना। मर तो क्या अब हर्ड इम्यूनिटी की बात करोगे तो बंदों को मरने देंगे क्या? सो दिस इज अ शॉक स्टेटमेंट। बट देन यू कैन कम बैक टू कि हर्ड इम्यूनिटी की सिर्फ ये बात मरने देने की नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी का एक ही तरीका नहीं होता है। हर्ड इम्यूनिटी का तरीका ये भी होता है कि यू नो वैक्सीन दे दो। एक बार एक बंदे को वैक्सीन दी गई तो ही कैन नॉट स्प्रेड दैट डिसीज टू एनीवन एल्स देयरआफ्टर। तो ये भी बड़ा शॉक वाला स्टेटमेंट से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद he gave a thought to people to say something and then you can carry forward. चौथी बात, facts, figures and statistics. अब इंजीनियर बंदा है तो ये बड़ा जायज है कि वो आंकड़ों की बात करेगा। एक चीज बताऊं, अब कुछ लोग those who are well read, इसके लिए मैंने पहले ये बताया कि प्रायर प्रिपरेशन वो बड़ी काम की चीज है।
अब ग्रुप डिस्कशन में एक बार बैठ जाते हो तो तुमको ये पता नहीं है कि क्या टॉपिक आएगा, लेकिन इफ यू तुम पहले से पढ़ लिख के आए हो, सोच के आए हो, या आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, तो तुमको थोड़े बहुत आंकड़े पता होते हैं। सो फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स का चक्कर यही है कि अप्रोक्सीमेशन इज अलाउड एट इन मैक्रो लेवल, लेकिन छोटे जो आंकड़े जो हैं उसमें अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम एक एग्जांपल मैं उसके बाद दूंगा नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन एक चीज बड़ी उसको गौर तलब है, उसको बहुत बड़े बड़े सोच समझ के दिमाग में डाल देना चाहिए कि स्टेटिंग रॉन्ग फैक्ट्स, अब गलत फैक्ट्स तुम्हें बता दिए, तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन मैक्रो लेवल तक ठीक है, लेकिन माइक्रो लेवल पे तुमने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, तो इट कैन वर्क एज योर डिसएडवांटेज। अब देखो 13th में, बिकॉज दैट इज व्हेन आई वाज एक्चुअली मेकिंग दिस स्लाइड 2 days बैक, तो देयर आर 78,000 प्लस, अब 81,000 के आसपास हैं कुछ केसेस, अराउंड या 81 समथिंग आज के दिन का डेट ही है। But up till 13 में there are 78,000 plus cases of COVID-19 in India, and there have been around 2,500 deaths. अब ये फिगर जो है, अब 78,000 मैक्रो फिगर है, उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, मतलब इसको अगर तुमने 77,500 वगैरह कुछ बोल दिया तो दैट इज ओके, बट 78,000 है और तुम 7,800 बोल रहे हो, तो ये बड़ा 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 घोटाला है। और 2,500 के डेथ के बदले इफ यू से देयर आर 25,000 डेथ्स, बड़ा चक्कर है। और पहले ही इंसान समझ जाता है कि ये जनता को इंप्रेस करना चाहता है, उसको कुछ खुद ने पढ़ा नहीं है। सो फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, while they are very good, that's a very interesting and very impressive tool to impress people, but उसका चक्कर ये है कि they need to be correct. So unless and until you are very thorough with your approximation, you should not be putting this. लेकिन ये डेफिनेट तरीका है, और हम हमारे इंस्टीट्यूट में जब ग्रुप डिस्कशन की एक्सरसाइज वगैरह रखते हैं तो ये देखते हैं कि बड़ी जनता ये फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बड़ी बताती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो बंदा ये बोलने की जिगर रखता है ना, जिसकी करेज रखता है, वो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होता है। लेकिन अगर ऐसे इसको एज ए टूल ही देखा जाए, और रादर देन एक्चुअली बीइंग थरो अबाउट दिस फिगर्स और सिर्फ इंप्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल हो, तो कभी ये गड़बड़ भी कर सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट एटीट्यूड अगर तुम्हारा थीम है तो, अब बड़ी फेमस स्टोरी है कि BMW, अगर आप 10 दोस्त मिले हैं और किसी चीज के बारे में कहीं जाते हैं और पूछते हैं कि यार तेरे को अगर BMW खरीदनी है तो कितना टाइम लगेगा, अगर डॉक्टर को पूछा जाए तो डॉक्टर बोलेगा कि यार दिस विल टेक 1 year's सैलरी, अब 1 साल की मेरी कमाई लगेगी BMW को बाय करने के लिए। लेकिन अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर ऐसा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सोचेगा 1 year is too less. Why it is too less? 1 साल कम होता है क्या? No, it will take at least 3 years. Why 3 years? Then the industrialists will say because ये कंपनी खरीदने के लिए तो मुझे 3 साल लगेंगे. So that's the right attitude. They just do not think about how to procure and how to acquire anything for a short-term thing, but they would rather think in a larger perspective of buying the factory itself. So this is an example of right attitude, how you think about progressing. So such short stories. अब balloon vendors की story है कि balloon कैसे ऊपर जाता है, तो balloon उसके color से ऊपर नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा है उसकी वजह से ऊपर जाता है. ऐसी short stories, if you begin like that, then it can really go for your advantage. जनरल स्टेटमेंट, ये भी तरीका होता है. सब जगह सब ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स में ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये क्वेश्चंस पूछो या फैक्ट्स एंड फिगर्स हो. फॉर एन एग्जांपल, एक अगर तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है, अब जैसे हम कर रहे हैं वर्चुअल क्लासेस रिप्लेस डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग, ये मुमकिन है. वर्चुअल क्लासेस को डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग से रिप्लेस करना मुमकिन है. Then you can start with a general statement. Well, to make an assessment, we should begin with understanding the attributes of theory and practical education in engineering studies, because obviously we are all engineers and we are sitting for an interview for engineering jobs. So
उसमें ये वर्चुअल क्लासेस का टॉपिक आ गया, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को तुम कैसे मीट कर पाते हो? अब वर्चुअल लैब्स और वर्चुअल प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इट कैन नेवर रिप्लेस the theory and practical demonstration of the concepts which are taught in the class. So this is how you can start that. We need to first understand requirements of engineering studies, उसमें practical की जरूरत क्यों है. So that's how you begin. Summarization, ये हमारा बीच का मामला भी आ गया, इनिशिएट हमने कर दिया. बाद में उसका जो the main theme है, उसका बैकबोन है, जो बीच वाला पार्ट है, उसमें हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आते हैं समराइजेशन टेक्निक्स पे. समराइजेशन, अब लोग डिबेट और डिस्कशन को कई बार कंफ्यूज कर देते हैं. अब डिबेट में ये होता है कि एक कोई जो अगर नोशन दिया जाता है उसके फॉर बोलेगा, उसकी तरफदारी करेगा. अब दूसरा इंसान है वो उसके अगेंस्ट बोलेगा. लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई ऑल द ग्रुप डिस्कशंस विल नॉट एक्चुअली हैव कंक्लूजन्स, as whole group wouldn't or shouldn't be of the same opinion of perspective. ऐसा हो नहीं सकता. So इसलिए उनको conclusion की जरूरत नहीं रहती है. Group discussion, people will have different opinion, but your summarization is just incorporation, not in incorporation, but the listing of whatever is discussed, and it is summarized. That we have, and some of the people are of this opinion, some of the people are of different opinion, but ultimately the main consensus is becoming like this summary. That's how you present your opinion. So it's a consolidated opinion, as we have written in this slide. So nutshell में अब ऐसा तो नहीं होता है कि summarization जो होता है वो तुम्हारा main जो topic है उससे ज्यादा चले. Normally ये होता है कि group discussion जब चल रहा होता है तो तुम्हारा जो moderator रहता है ना, वो moderator ही बोलेगा कि this is last 1 minute or 2 minutes maybe to summarize. So that's when this is going to be of help. अब समराइजेशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, और यहाँ बड़ी गड़बड़ करते हैं लोग. एक तो ये होता है कि one should avoid raising new points. कोई नई चीज, अब पूरे ग्रुप डिस्कशन में इसके बारे में हमारी बात भी नहीं हुई है, और समराइज करने को जब तुमको बोला जाए, then you raise this point. So that's not acceptable. Next is avoid stating only your viewpoint. ये गलती सब हर इंसान करता है. लेकिन लीडर ये है कि जो सबके बारे में बताए कि इसने ऐसा बताया, मैंने ऐसा बताया, और बहुत सारे जो चीज बता रहे थे उसका उनका ये कहना है. सो ये एक निशानी है कि वो तुम कॉर्पोरेट कल्चर में सबकी बातें वो दिमाग में रखेगा ये इंसान, और सबके ओपिनियन के बारे में बोलेगा. तो ये देखा जाता है. इसलिए when you summarize, do not keep stating about only your viewpoint. अब तीसरी चीज, if there are 2-3 main major points discussed during a group discussion, don't keep dwelling. मतलब एक ही चीज के ज्यादा 50% से ज्यादा चीज एक ही चीज के बारे में डिस्कस हुआ है, तो do not keep talking about only one aspect of the group discussion. ठीक है. अब दूसरी, since it is just 2 minutes, last 1 or 2 minutes given for summarization techniques, you need to keep it brief and concise. इसके लिए तुमको थोड़ा प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन लगता है कि तुम ब्रीफली, और मैं बता रहा हूं दोस्तों, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है. सबसे कम शब्दों में पूरी चीज की समरी देना वो सबसे मुश्किल काम है. अब कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी आराम से सुनता है, इनिशिएट किसी और ने किया है और बड़ा इंप्रेसिव किया है, लेकिन उसके बाद वो कुछ बोला नहीं. लेकिन पूरी चीजें सुनने के बाद there would be one person who would have taken note of everything, and he would be able to summarize the thoughts given by each and every participant of the group. So he might get all good grades because he knows how to keep it brief, how to keep it concise, and he talks about everyone. That's the main theme. So इसलिए समराइजेशन जो टेक्निक है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है. और ये सिर्फ ग्रुप डिस्कशन वगैरह में नहीं होता है, सब जगह ऐसा होता है. इवन यू सिट फॉर अ वाइवा. अब तुम्हारे वाइवा आएंगे तो वाइवा में भी ये चीज बड़ी जरूरी है. अब कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो सिर्फ अपनी बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं. लंबी बात जरूरी नहीं है, इसको कॉन्साइज रखना बड़ा क्रूशियल है. नाउ वी टॉक अबाउट द बेस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज.
अब स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या? अब क्रिकेट तुम खेलते हो तो शॉर्ट बॉल आ गया तो तुम्हारी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होगी, फुल टॉस आ गया तो तुम्हारी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। उस तरह से ये तुम्हारी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी व्हाइल ग्रुप डिस्कशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। दिस आर जस्ट 4 पॉइंट्स। इनिशिएशन ऑफ डिस्कशन, जिसके बारे में हमने बताया, अगर अच्छी इनिशिएशन तुम करो तो फिर यू डू वेल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और तुम जनता की सुनने पे लगते हो और उसके बारे में सोचने भी लगते हो। दैट हेल्प्स। नेक्स्ट इज ट्राइंग टू कीप डिस्कशन ऑन ट्रैक। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर फायर फाइटर्स। कई बार ऐसा होता है कि बात पटरी से उतर जाती है, तो कुछ लोग ग्रुप में तो ऐसे ही होते हैं कि लेकिन हम ये बात कर रहे हैं लेकिन हमारी थीम ये नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो नोटेड एंड पीपल आर मार्किंग यू और इवेल्युएटिंग यू बाय फॉर डूइंग दैट कि ये बंदा जो है ये इज अ गुड ट्रबल शूटर। नेक्स्ट इज कंक्लूजन ऑन टाइम। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीजें आ जाएं। तुमको सिर्फ 6-7 मिनट का टाइम दिया जाता है, you may not be able to conclude, you may not be able to include all the points, but what is most important is you should be able to conclude on time. अगर टाइम की तुम केयर करते हो तो वो जनता समझती है कि ये टाइम की केयर करता है, वो कंपनी की भी केयर करेगा। So that is conclusion of time is very necessary. The next is, which is very very important and very उसको बड़ा कम ये देखने को मिलता है। कुछ लोग अल्फा मेल होते हैं, अल्फा मेल, फीमेल्स भी होती हैं, वो भी अल्फा उनका कहने का मतलब ये है कि अल्फा से मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, और अगर मेरी बात नहीं सुनते हो तो मैं चिल्ला के भी तुमको मेरी बात सुनवाऊंगा और समझाऊंगा। द कैपेबिलिटी टू कीप कूल एंड लिसन एज वेल एज एम्फेटिकली पुट योर पॉइंट्स, दोनों चीजें हैं। अब कुछ लोग घबरा जाते हैं। एक ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है, वो डराने में कामयाब हो जाता है और दूसरा इंसान डरने में कामयाब हो जाता है। एक्चुअली नन ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल और ये तुमको स्कोर नहीं दिलाते। अगर तुम ठंड रखते हो, किसी की बात सुनते हो तो ज्यादा मार्क देते हैं रादर देन एम्फेटिकली पुटिंग इट। और एट द सेम टाइम द पर्सन हु इज सबमिसिव, जो अच्छा भाई तुम जैसे बोल रहे हो, वो सुनने वाला है, उसको ये सीखना है कि ही शुड बी एबल टू एम्फेटिकली पुट हिज ओन व्यू पॉइंट्स। ठीक है। अब मॉडरेटर भी कई बार बोल देते हैं कि यार तुमने बहुत बोल दिया, अब इसको भी बोलने दो। कई बार ऐसा होता है बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग यू। बट सो इन नटशेल दिस आर द बेस्ट scoring opportunities. Now we have reached to almost end of it, and then we can keep this session. We can take 2-3 questions as well. But these are the concluding remarks. Your conviction, ये बड़ा जरूरी चीज है। अब किसी चीज के बारे में, अब सब लोगों ने वो चार्ली चैपलिन का द ग्रेट डिक्टेटर का सीन देखा होगा। वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, ऐसा कुछ तुम गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे तो तुमको ये देखने को मिलेगा, द बेस्ट स्पीचेस एवर मेड। उसका ऐसा यूट्यूब में ऐसा टाइटल है। तो द ग्रेट डिक्टेटर नाम की जो मूवी थी चार्ली चैपलिन की, उसमें कन्विक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। अगर आदमी सोचता ठीक से है, अब उसके दिमाग में कुछ ख्याल हैं, तो फिर उसका स्टेचर कैसा है, कैसे दिखता है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वो मैटर नहीं करता, वो मायने नहीं रखता। सो सबसे ज्यादा चीज है योर कन्विक्शन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी in any activity, not only group discussion, in any interview process. अब कन्विक्शन तुम्हारा है तो तुम्हारी लैंग्वेज से ज्यादा ऊपर है। ये दोस्तों बिल्कुल याद रखना। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि यार ये मेरे साथ ये इंग्लिश मीडियम वाला आ गया, वो बड़ी चीज बोल गया और मैं डर गया और आई डिड नॉट स्पीक। बट योर आइडिया, योर कन्विक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कमांड ओवर लैंग्वेज। ठीक है। Next thing is, nothing is more helpful than reading and remaining updated. इससे ज्यादा किसी भी चीज का फायदा नहीं होता है तुम्हारी सोच, तुम्हारी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने। तुम जितना ज्यादा पढ़ते हो, जितने ज्यादा अपडेटेड रहते हो, वही तुम्हारे काम आता है। तीसरी, कंपनी जो है उसको, अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये सबसे पहले बोल गया, सबसे ज्यादा बोल गया, इसने लीडरशिप एग्जिबिट कर दी तो वही तो सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ये उनको लीडर ऑफ द पैक तो चाहिए। पैक मतलब अब पूरी उसकी जो भारी होती है, गड्डी होती है, तो उसका सबसे लीडर जो होता है, सबसे ऊपर वाला, तो सिर्फ ये कंपनीज को सिर्फ लीडर ही नहीं चाहिए होता है, उनको सेंसिबल पैक, उनके फॉलोअर्स भी सेंसिबल होने चाहिए कि नहीं।
तो ऐसा मत सुनो और ऐसा मत मानो कि इसने ज्यादा बोला, इतने एग्रेसिवली बोला, इसने अच्छे पॉइंट्स बोले तो वही पिक हो जाएगा। लेकिन सेंसिबल पैक, अगर तुमने ऐसी कोई 2-3 बातें तुम्हारे डिस्कशन के दौरान की कि which proves that you are sensible, you know your things, then this is going to be extraordinary achievement, and the company is looking for both. उसको लीडर भी चाहिए और उनको टीम वाले भी चाहिए। जब भी टीम होगी तभी तो लीडर होगा, अगर टीम ही नहीं है तो लीडर का क्या मतलब है? So they are looking for both. ठीक है? So well, that's all. I mean, this is what I just needed to share. We can have several more sessions. ये group discussion हो गया. We can have subsequent webinars, similar webinars about interview process as well in future. Thank you. Over to you, Nayan sir. Thank you, sir. Thank you very much for such a nice session. It was really a wonderful presentation where almost all the integral parameters which is touching regarding the group discussion has been discussed in an extensive manner. Thank you. So, yes, sir. And while we are concluding, according to me, I have been noticed almost 2 or 3 observations. Probably derivations like some common mistakes in the group discussion. The first one is waiting for the right time. There will be never come a perfect time to speak. You will have to snatch the time among the discussion. So the students who are sitting for the interview, they are supposed to wait for the right time. So wait for an opportunity where you can enter the discussion. This moment needs to be very appropriate, otherwise it will look like you are shouting and dominating. Wait for a chance where to volume of whole group come down a bit. Then you just speak in a firm with not rude voice. Second point, what we can say is not listening to others. So some candidates keep on speaking again and again, thus not giving a chance to others to speak. While some candidates, when start speaking, speaks for a really long time. Then you start speak for maximum 90 seconds to 60 seconds to 90 seconds, and give others a chance to speak. That is the second one. And the third one is trying to overhelp. Candidates sometimes try to do charity by pretending to help others in group. Thus, they take some stupid questions so that others can speak. So these are the common mistakes which should be avoided while involving in the group discussion. So with this, let us open the question answer session. We are having the chat box, and let me check if the students are having any questions they may ask. Please write your questions if you want to discuss in the chat box, students. Looks like nobody is typing as of now. There have been many right messages. I'm really thankful to all friends. Most of them have, shared their feedback, but we are looking for some questions as well. Yes, exactly. Yeah, we have the questions right now. They are just start coming. Sir, what about the group discussion which has no conclusion? The first question we have. Yeah, this is a good question. अब conclusion का ये तो मतलब नहीं हो गया कि तुम इसका पूरा मतलब कोई conclusion होता ही है. For an example, अब बोलते हो कि ये मैच तुम्हारा हो गया तो ये 50 ओवर का मैच था, या इंडिया जीती या ऑस्ट्रेलिया जीता. ऐसा जरूरी नहीं है ग्रुप डिस्कशन में कि उसका कंक्लूजन हो ही.
लेकिन इस इधर कंक्लूजन का मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड और उसको तुम कंक्लूड कर रहे हो। अब ये तुमको जो थीम दी गई है उसके बारे में सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो बोला ही है। अब कुछ बोला है तो उसको कंक्लूड करने की बात है। ये जो टॉपिक है, अगर पेंडेमिक को तुम कैसे सॉल्व करोगे या इसको मिटा कैसे दोगे, तो इसका कोई कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन होता नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और उसको तुम करेक्ट करने की चीज बात कर रहे हो, वो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं हम इधर। Yes, I feel the student must have satisfied with this answer. We are having one more question from Harsh Shukla. Sir, minimum time of group discussion means he is expecting that what minimum time of the discussion a company may provide. यार that depends. नॉर्मली कैसा होता है कि कंपनीज 6 से 8 से 10 मिनट, इट्स नॉट मैंडेटरी, 8 मिनट का कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन अब 8 लोग हैं फॉर एन एग्जांपल, ग्रुप का साइज है, तो सबको 1-1 मिनट बोलने को मिलना चाहिए। उस हिसाब से कंपनी 8 से 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई टेल यू। 10 मिनट का डिस्कशन अब तुम सुनोगे तो बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं और लॉट ऑफ पीपल विल फंबल इवन टू टॉक फॉर 10 मिनट्स, सो नॉर्मली 8 मिनट्स। We have one more question from Akash Chaudhary. Should we take note while discussing? एक्चुअली ये नोट टेकिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नेसेसरी हैबिट। अब कुछ लोग ऐसे ही चले आते हैं, हाथ में कुछ होता नहीं है, पेन होती नहीं है, अब उनको अगर कोई और बोलता है और उसके बारे में वो खुद कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके पास वो याद नहीं रख पाते। सो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू कीप ए नोट and take things down as and when things are discussed. It is always a good idea to keep something for writing, always. We are having one more question from Savai Singh Bhatti. Sir, how can we practice group discussion skill in our normal life and improve it? यार ये बड़ा ऑब्वियस सा, एक्चुअली सब लोग जानते हैं इसका जवाब। इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है? अब प्रैक्टिस, अब बात करने से, अब ऐसी चीज, अब स्विमिंग तुम पानी में पड़े बगैर सीख नहीं सकते, तो डिस्कशन तुम बोले बगैर सीख नहीं सकते। अब तुम सबको पता है कि व्हाट आर द चैलेंजिंग एरियाज, अब क्या क्या चीजें अब आजकल बन रही हैं, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, तो बस दोस्त लोग साथ में बैठो और डिस्कस कुछ चीज। पहले अगर 8-10 लोग मिल जाते हो, आजकल तो मिलना मुश्किल है फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से, लेकिन whenever you meet, so make it a point that you pick any recent thing and start discussing for 5, 6, 7, 8 minutes. अब बोलने में 7-8 मिनट का टाइम बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये बड़ा है मुश्किल। सो पढ़ो ठीक से, अपने आइडियाज नोट करो और अपना खुद आइडिया कुछ जनरेट करो और ऐसे काम करो। सो दैट विल हेल्प, दैट्स द ओनली वे आउट। ऐसे उसकी कोई रेमेडी नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला पहले से डिसाइडेड नहीं होता है और पहले से ही फॉर्मूला, सक्सेस मंत्रा, ऐसा कुछ नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन में। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। We have one question. Should we begin the group discussion by appointing a leader among ourselves? Yeah. मुझे ठीक से समझा नहीं मैं। What is the question? The question is, should we begin group discussion by appointing a leader among ourselves? यार ये तो ऐसे ही हो गया कि पहले ही तुमने स्वीकार कर लिया कि यही लीडर है। ऐसा जनरली ऐसा नहीं किया जाता। और आप खुद कैसे डिसाइड कर रहे होते हो, आप कर रहे होते हो कि तुम लीडर नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। कोई nobody designates a leader, पहले से कोई लीडर डेजिग्नेटेड नहीं होता है। लीडर तो तुम्हारे परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि ये आदमी लीडर बनने के काबिल है कि नहीं। अब सब स्टूडेंट्स हैं, सब अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, तो पहले से ये किसी को पता नहीं होता है कि ये लीडर है कि नहीं है। इसलिए देयर इज नो रूल ऑफ और नॉट लेटिंग अपॉइंट और नॉट अपॉइंटिंग एनीवन एज ए लीडर। अब पहले से बोल दिया है कि हमारे सब के बारे में ये बोलेगा, तो इंडस्ट्री को पता चल जाता है कि ये सब यूनियन वाले हैं, ये सब हमारी मांगे
ये बोलेगा और हम सिर्फ फॉलो करेंगे। ऐसे लोगों की कंपनी को नॉर्मली आवश्यकता नहीं रहती है। Yes, sir. Sir, should we take last two questions? Yeah, please. Last two questions, right? One question is from Harsh Shukla. सर, कोई बार ऐसा टॉपिक आ गया जीडी में जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है, तब क्या करें? यार ये मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो दैट इज जस्ट योर बैड लक। और उसमें ऐसा कर सकते हो, द बेस्ट स्ट्रेटेजी कुड बी यू विल जस्ट, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट गाय और तुम इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन के बैठते हो, लेकिन टॉपिक क्या है तुमको कुछ पता नहीं, लेकिन यू लेट पीपल थिंक, लेट पीपल स्पीक। अगर ग्रुप में से कोई तो रहेगा जिनको इसके बारे में कुछ तो पता होगा और वो खुद एक बार इनिशिएट कर दे और कुछ बोल दे, उसके बाद यू हैव योर आइडियाज, यू कैन फ्रेम योर ओपिनियंस बेस्ड ऑन हाउ ही हैज स्टार्टेड और व्हाटएवर ही हैज स्पोकन। ये बिल्कुल मुमकिन है। सो ऐसा हो सकता है, कई बार होता है कि हमको नहीं पता होता है, लेकिन हमारे पास इतना दिमाग है कि हम ये समझ पाते हैं कि कोई बोल रहा है तो उस पर हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए। दैट कैन ऑल्सो हेल्प। Yes, sir. The last question we are now taking. That is, sir, the question was about professional discussion, but still understood. Thank you. Okay, there is no question now. I think that was the last one. Right, sir. Thank you. Okay, fine. So it was really a very wonderful presentation, and student has must have enlightened, and they must have got the what can I say first regarding the group discussion, and it will be going to definitely helpful to them while facing for any interview. So I would like to thank Chaya sir for presenting such a nicely this topic and made this event a grand success. Sir, thank you so much. It's an honor और मेरा ये फर्जी है, ये बच्चों से बात करके, इतने टाइम के बाद बच्चों से बात करके, it really is really feeling so good. Thank you. Thanks for giving me that opportunity. Thank you.